Shame Gana, 27th of August 2021, 8 p.m. I'm Madhvi Batula. Change is very important. हम पैसों की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि change in variety in life. The last Friday of the month of August, time just flying by, and lots of changes coming our way. Many families are gearing up to some changes coming this week, and with schools and colleges and educational institutions all opening up, there's going to be a lot of change there. When in doubt, they say accept change. I think today I'm also at a threshold of a little big milestone of my life, whereby today I take the liberty of dedicating every moment of today's Shame Gana to somebody very, very dear and special, without whom I would have known who I am today. I request all the participants to mute their mics, please. So I said that whoever I have been till date is because of this gentleman, and starting tomorrow morning, I will definitely be a changed person. You may not see the me that you've been seeing me for last 2 decades, somebody very, very different. Dr. Das, this show today is dedicated to you. Thank you for everything that you have done to me, for me, and for everything that is part of my life. And the presenter that you see on your screen today, Madhvi Batula, is his creation also. So I was talking about change, and change, they say, is a good thing. And when in doubt, keep the change. Today's program, of course, it's not a regional special, but it is something very, very special in many regions of India. We're talking about Ghazal. Ghazal has had its own trajectory of change. You know, starting from the 6th century in Arabia to Persia to India, and today to an English-speaking world. And many of us, like somebody like me who doesn't understand too much about music, but just likes the melody of it. And we sometimes do not know the difference between a geet, a Gana, and a Ghazal. And I guess today's presenters will give us all that variety in today's Shame-e-Gan. So welcome to this program. Today we are joined by Mihir, Harsh, and Vijay. And of course, our very own Dr. Tushar Patel is also here. Maybe we're going to throw him a bouncer and say कि ये गजल आपसे भी हो जाए. तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम के और आगाज करते हैं. Let's start with Mihir. Mihir, नमस्कार. Welcome to Shame Gana गजल स्पेशल. कैसे हैं आप? आपका परिचय, आपसे मुलाकात हुई है यहाँ पर एक बार. And let's our new viewers know a little more about yourself and what you are presenting this evening. Thank you, Madhvi ji. Thank you, Dr. Saab. आप लोगों को फिर से मिलके बहुत आनंद हो रहा है और न्यू पार्टिसिपेंट से भी मैं कुछ सीखूंगा आगे. तो स्पेशली गजल, दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग स्पेशली फॉर द गजल प्रोग्राम, बट होप एवरीबडी विल लाइक माय चॉइस. Sure, they will. So viewers, you got your message there. You have Mihir on your screen after I get off the screen, and he's going to present his first ghazal of the evening. And it's a completely different melody. Whatever is your information about ghazals, please do go ahead and share about it. Mihir, my full name is Mihir Acharya. I am from Chicago and working with the hospitality industry since long time. So, and music is my passion. Especially today, the choice I got most of the ghazals from Bhupendra Singh, and actually I love his voice. It's very melodious and एक नशे वाला feeling है उनकी आवाज में. तो I like his voice. That's why I chose most of the ghazal from Bhupendra Singh. Okay, wonderful. तो शुरुआत करते हैं आपके पहले गजल के साथ. Welcome to Shame Gana, friends. Today's episodes we have Mihir, Harsh, and Vijay, and along with Dr. Tushar Patel, and I'm Madhvi Batula. Mihir, please take it away. तो पहली गजल है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। थैंक यू। आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत होगी ये गजल प्रोग्राम, गजल स्पेशल टुडे ऑन शाम गाना। मिहिर जी की फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी यहाँ पर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से ये गजल। हाँ, जब ये खयाम साहब की कंपोजिशन में ये किया था और लिरिक्स ऑफ कोर्स निदा फसली साहब के। जब भूपेंद्र साहब एंड आशा भोसले जी को बुलाया गया था इस गजल के जो सेशंस के लिए, they were just taken aback by the lyrics. यूजुअली क्या होता है कि जब आप
कोई भी पोइट्री की बात करते हैं तो राइम और रीजनिंग बहुत होती है, राइम के साथ चलते रहते हैं, ऑफ कोर्स तुक बनता रहता है, लेकिन कोई ऐसी बात उस गजल में, उस पोइट्री में ऐसी बात निकल आई जो आपके रोम रोम को चीर के रखते हैं और आपको लगे कि ये आप ही के बारे में हो रहा है, आप ही की जिंदगी से रिलेटेड है। आज भी इस वक्त, किसी भी वक्त आप इस गजल को सुनते हैं, इसके बोल जब आप ध्यान देते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये मेरी अपनी कहानी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स होता है। तो ये खासियत थी हमारे निदा फजली साहब की, और उनकी गजलों के बारे में आई एम श्योर बहुत जिक्र होगा इस आज के प्रोग्राम में। बट अगर निदा फजली साहब की बात करें तो साथ में जगजीत साहब का नाम हमेशा ही साथ आता है, लेकिन वो जोड़ी ऐसी थी कि देखिए ना, जिस तारीख पे निदा फजली साहब का इंतकाल हुआ वो एक्चुअली जगजीत साहब का बर्थ डेट है। That is the combination and Jodi's and legendary bondings that people have had. And thank you for this beautiful start of Sham E Gana. चलते हैं हर्षी की तरफ। नमस्कार जी, वेलकम टू शाम ए गाना गजल स्पेशल। मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आपके खास दोस्त और फ्रेंड हैं। नमस्कार माधवी, how are you? I'm doing very well, thank you. How about you all? We are doing fine. This is our second time, so hopefully you liked our first presentation. I'm very happy that Ganesh ji has decided to join me. नमस्कार गणेश जी, आज तो आपसे बात जरूर होगी। वही बात करेंगे। चलिए बताइए कुछ और आप अपने इस जोड़ी के बारे में। I know we've had a little introduction few weeks ago here on Sham E Gana, but there are new viewers, a new audience joining us. Please tell us a little more about both of you, and then we can go to your Yeah, absolutely. I'll start with Ganesh ji. He's a professional tabla player, professional percussion artist from Bollywood, but he lives in Maryland. He's very popular all over US. So I'm very lucky that he's with me. And I am an IT professional. I have an IT company, but I'm very fond of learning music. So whenever time permits, I learn music. I'm more interested in learning than performing. I play sitar and I sing ghazals. I learned ghazal singing from my Ustad Javed Saroya ji. He's from Pakistan, a wonderful artist. Beautiful. That's a beautiful introduction. Very good. चलिए आपकी पहली पेशकश आज गजल स्पेशल में। हाँ, तो ये बड़ी फेमस वो है मेहदी हसन साहब की। आई थिंक इट वाज इन अ मूवी, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। ओके, द वेरी हैंडसम वाहिद मुराद पे पिक्चराइज किया होगा ना। थैंक यू सो मच। सो इजाजत दें। जरूर। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई मेरी वफा ने बुझाना भी चाहो,
बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब. And Thank you so Wahid much. Murad के बारे में, you know, the chocolate hero from Pakistan, whom we lost at a very young age, 45, if I'm not mistaken on that. And of course, इस फिल्म में दो राह जो फिल्म थी, ये इतनी खास चली नहीं initially, पर उसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, you know, the way to access music became more easy. I think late 80s or 90s, people started buying cassettes of this particular movie, and then they said, oh wow, there are some really magical songs in this particular movie. And I think there were 9 or 10 songs in this movie, but there was only one ghazal by Mehdi Hasan Saab. And then of course it was a blockbuster, and we still today sing. चलिए चलते हैं, अभी हर्ष जी से बात हुई है, चलते हैं विजय जी के पास. विजय जी के साथ भी एक मेहमान और गेस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत. प्लीज गो अहेड. नमस्ते. नमस्ते जी. Thank you for inviting me again. तुषार जी और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे साथ हैं one of the very accomplished tabla player of Southern California, Deepak Kumar ji. I am fortunate that he is joining me today. Also, I have in support of keyboard, I have a fresh talent from India, Rushabh Kapadia. He is joining us from. He's visiting and he's just came, so he's joining us. Beautiful. I want to welcome Deepak and Rushabh ji, and I'm getting the feed. So Vijay ji, आप जो भी कहना चाहते हैं गजल के बारे में, you can continue. So, गजल का ओरिजिनल मतलब है प्रियतमा के साथ की बात, बट जगजीत सिंह और मेहदी हसन जी ने उसको कहीं और ऊंचाई पे ले गए, और स्पेशली जगजीत सिंह जिन्होंने गजल को एक नया रूप दिया. सो टुनाइट्स इवनिंग आई विल स्टार्ट विथ अ ब्यूटीफुल गजल बाय जगजीत सिंह, पर उससे पहले एक शेर हो जाए. झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे लगते थे, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे लगते थे. उन दिनों की बात है जब हम छोटे छोटे बच्चे लगते थे. और दूसरी बात है कि बचपन में भरी धूप में नाप लेते थे पूरा मोहल्ला. गुलजार साहब का कलाम है. बचपन में भरी धूप में नाप लेते थे पूरा मोहल्ला, जब से टेम्परेचर और डिग्री की समझ आई पांव जलने लगे. तो चलिए एक बहुत ही फेवरेट गजल बाय जगजीत सिंह, उसका कलाम है सुदर्शन फाकिर साहब.
कड़ी धूप में, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छन्नों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छन्नों से प्यारे से तोहफे, वो डूबी हुई चूड़ियों की निशानी, कागज की कश्ती, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में वो नानी की बातों में, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पेरा, भुलाए नहीं भुलाए नहीं, भुलाए नहीं, भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत खूब, थैंक यू। प्लीज म्यूट योर माइक। थैंक यू जी। ये फिल्म जो ये गजल जो आपने अभी पिक किया, आप में से बहुत कम वो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी। आप में से कुछ कह रहे हो कि माधवी कहीं से कुछ भी, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस फिल्म में उनका नाम था राजीव भाटिया, एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस, छोटा सा रोल था। और ये गाना जो पिक्चराइज हुआ था, ये गजल जो पिक्चराइज हुआ था स्मिता पाटिल एंड कुमार गौरव पे। जी हाँ, मैं फिल्मी साइड ऑफ द गजल ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट आई डू रिमेंबर अबाउट इट। और इस फिल्म में कुमार गौरव का नाम अक्षय था। तो कहते हैं
कभी अक्षय कुमार से फिर से बात होगी तो पूछेंगे कि भाई कहीं आपने अपना नाम यहीं से तो नहीं पिक किया, वो कहेंगे हाँ शायद। बहुत ही खूबसूरत गजल। एंड Amazon प्राइम पे शायद या फिर नेटफ्लिक्स पे, मुझे याद नहीं, ये दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी जगजीत सिंह साहब पे, कागज की कश्ती। आप में से जितने भी संगीत प्रेमी हैं, गजल प्रेमी हैं, जगजीत सिंह साहब के फैंस है, आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। आई थिंक 2017 के आसपास की थी, बट अभी आई थिंक दे री रिलीज्ड इट, इट वाज देयर फॉर सम स्टिपुलेटेड टाइम। कागज की कश्ती एंड योर profound love for this ghazal maestro, it just doubles and doubles, and you feel, oh, I wish I had couple of more opportunities to talk to this gentleman and get to know a little more about his depth, his pain, his journey. उस डॉक्यूमेंट्री में उनके भाई साहब से और उनके शहर के कुछ लोगों से और उनके जितनी भी उनकी इंडस्ट्री में कुछ लोग जिनसे बहुत क्लोज थे, उनसे बातचीत होती है। लेकिन once you see the documentary, I'm sure your opinion about this Ghazal King will completely change. And I see तुषार जी just logging out and saying कि मैं पहले देख के आता हूँ फिर बात करते। तुषार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार माधवी जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या हाल है? और आज के प्रोग्राम का आगाज तो हो गया है, आपको कुछ कहना है हमारे व्यूअर्स से और हमारे आज के पार्टिसिपेंट से? प्लीज टू गो अहेड। बहुत अच्छा आगाज हुआ है आज, शाम में गजल आज तो हो गई है हमारी 74th एपिसोड। वेलकम बैक मिहिर, हर्ष, विजय, एंड वेलकम बैक गणेश जी आल्सो फॉर दिस वंडरफुल गजल शाम। एक्चुअली this is something so unique, something different on our platform. So I'm so glad this wonderful singers joined and spent some time with us this evening. Thank you so much. Thank you. आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी इसकी, मैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि कागज की कश्ती? नहीं देखी मैंने, नहीं देखी। आज रात का क्या प्रोग्राम है, देख लीजिए। Yes, definitely. I'm definitely, all the music lovers will join, and once again a warm welcome also to Deepak ji and Rishabh ji who have joined us. We are so glad that this is a good gathering this evening on Friday. Now let's get back to Mihir ji, and I also noticed that couple of mics I'm getting a feedback, so just a request कि जैसे आपका गाना खत्म हो जाए, दूसरे गाने से पहले भी प्लीज गाना अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिए। मुझे थोड़ी सी आदत है ज्यादा बोलने की, नहीं थोड़ा सा बोल लेती हूँ बीच बीच में। एंड देन ऑफ कोर्स वी विल मूव फॉरवर्ड। और अगर गजल के बारे में आप कुछ भी शेयर करना चाहेंगे, आपका फेवरेट गजल, या फिर आपने कैसे इस गाने को या इस गीत को या इस लिरिक्स के बारे में एनी कनेक्शन, प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू इंट्रोड्यूस योर गजल टू आवर व्यूअर्स। हर्ष जी, लेट्स गो टू मिहिर जी फर्स्ट। आपका माइक म्यूटेड है मिहिर जी। सॉरी, दैट्स ओके, हाँ गो अहेड। दूसरी गजल मैं गजल फिल्म से ही लेके आ रहा हूँ। ओह। और जैसे आप मेरे पीछे देख रही हैं रफ़ी साहब, तो आई नो एवरीबडी लव्स रफ़ी साहब, नॉट ओनली मी। तो आइए रफ़ी साहब की आवाज़ में गाई गई एक गजल फिल्म से। वाह। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात
अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने, मैं उन अपनों में हूँ जो जिसे बेगाने, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़ेगी तबोताब मुबारक हो तुम्हें, सुर्ख जोड़ेगी तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे, मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, से पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। थैंक यू। कौन कहता है चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। साहिर साहब, ओ माय गॉड, ये जो बात है ना, जो गजल और पोइट्री की अगर बात होती है, लिरिक्स की, लिटरेचर की बात होती है, मैंने जैसे कहा कि रोम रोम आपका छिल जाता है और आपको लगता है कि भाई बस बस बस,
बट वो कहते हैं ना, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, वो दर्द में जो मजा है कुछ अलग ही है, एंड दैट इज व्हाट इज अ गजल स्पेशल. लाइक आई ऑलवेज से दैट आई एम जस्ट admirer of beautiful music and poetry and literature. I may not be poetic in my expressions, but it's just the joy that comes out when you listen to such powerful lyrics. And then you like wonder, why is always the guy who loses his girl standing at the wedding or the reception and giving her all the badduas and duas there? And of course, the Ghazal maestro, Shehzada of Ghazal, Madan Mohan साहब के composition और रफी साहब की enigmatic voice पे ये original था. यहाँ मिसिर साहब ने did a complete justice. It was not a typical Hindi film story. It was just because how the story was narrated, how it unfolded, it gave you the charm, and it's called like Urdu romance, right? I think Agra के आसपास की कहीं की कहानी थी, and I think all the wonderful legendary actors who were there in this movie, they've all gone. But wherever they are, this is what they have left behind. Let's go to the next one. Mihir ji, बताइए कि कितने गजलों के बीच में से आपने ये 5 या 6 गजलें आपने पिक की? It is really hard to choose, especially 3-4 ghazals from the ocean of the ghazals. लेकिन रफ़ी साहब, जैसे मैंने कहा कि everybody loves, तो मैं I love भूपेंद्र जी का आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रफ़ी साहब भी इतने ही मैं उनका आशिक हूँ. तो मैंने सोचा रफ़ी साहब को अगर शामिल नहीं करते तो गजल तो नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी. अच्छा ये बताइए, आप एज अ सिंगर जब आप पैशनेटली इतने सारे गीत और गाने गाते हैं, तो जब आप गजल के पास पहुंचते हैं तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? आपको लगता है कि वो जो ठहराव है, it teaches you something more than just singing, or it's something more to it? The difference between singing other songs and ghazals is basically what I feel is, जब गाते हुए मैं भी लिरिक्स को फील कर रहा हूँ, तो जो लिरिक्स मैं गा रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिकली फीलिंग्स जुड़ जाती है मेरी. तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मैंने आज सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता हूँ वो गीत गाते गाते, तो ज़्यादातर मैं लाइव प्रोग्राम में वो सिलेक्ट नहीं करता. स्पेशली विद द गज़ल गाते गाते कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ मैं, और काफ़ी लोग हो जाते हैं. तो ये डिफरेंस है बेसिकली कि लिरिक्स कभी कभी दिल को छू जाते हैं. जी जी. चलिए आपके अगली पेशकश में तो वैसे ये दिग्गज दो मेरे से बहुत बड़े हैं संगीत में, तो मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ वो जब गाते हैं तो, क्योंकि मैं तो आई एम जस्ट अ स्मॉल आर्टिस्ट. How sweet and kind of you. And हर्षी, विजय जी, आप ध्यान दे रहे हैं ना, आप ही की तारीफ हो रही है, तुषार जी और मेरी नहीं. हम गा नहीं रहे आज. चलिए मीर जी, चलते हैं आपकी नेक्स्ट गजल की तरफ, and let's enjoy. And all the wonderful viewers out there, you know what you're doing. Nothing. Yes. You just have to comment and give us all the love. तीसरी गजल है मेरी, भूपेंद्र सिंह जी हैं और आशा जी की आवाज़ है उसमें. तो शायद डॉक्टर साहब जानते हैं, मेरी शी इज़ लाइक माई सिस्टर Darshana Patel. She will give me support to sing that ghazal. तो मिहिर जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया, तो आप जरा चेक कर लीजिए. जैसे आप दर्शना और आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं. दर्शना जी नमस्ते. Okay, yeah, now we can see. There I can also see Darshana. Welcome to Shame Gana. All wonderful. Thank you for joining us this evening, and the mic is all yours. Go ahead. Thank you. बहुत प्यारी सी गजल है. फिल्म एतबार, और आवाज है भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले जी की.
तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फ़ज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फ़ज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे है इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह पे खाया प्यार आज भी है। हो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए
Thank you. Thank you, Darshana and Mihir. Emotion, drama, thrills, music and songs. That was Bar. And disco king की बात हो रही है वहां पर. गजल और डिस्को ये कैसे चला? जी हाँ, बपी लहरी साहब's music. Suresh Oberoi, Dimple Kapadia and Raj Babbar. I do remember the song very well because I think at some point in time in life, I do remember every singer wanted to sing this in school competitions or any stage shows. किसी ने ये गाना पकड़ लिया, इसका मतलब वाह वाह वाह, वो तो बड़ा संगीतकार है, गायक ही है. लेकिन हर कोई मीर साहब की तरह भी नहीं है, है ना? भूपिंदर एंड आशा भोसले जी को बहुत बहुत सलाम and thank you for giving us such beautiful voices out there that people want to, you know, go towards music and enjoy, and everybody braves it out and also comes here on Sham E Gana. It's Sham ए गाना और शाम ए गजल कह रहे थे आज शाह जी, तो बिल्कुल वो भी आज सही बैठता है हमारे लिए. चलते हैं हर्ष जी की तरफ. एंड हर्ष जी, आपसे भी वही बात है कि आप बताइए कि आपको कैसा लगता है गजल के बारे में सुनते हैं. जब किसी भी संगीत प्रोग्राम में आप जाते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि कोई गाना गाइए, तो फिर आप एकदम से गजल की तरफ जाते हैं या किसी गीत की तरफ जाते हैं, और जो खिंचाव है क्यों है? हाँ, मुझे गज़ल से ज़्यादा लगाव है. एंड एक्चुअली मुझे ओल्ड स्टाइल से ज़्यादा बेगम अख्तर टाइप की जो गज़लें हैं उनसे ज़्यादा लगाव है. बेगम अख्तर और मेहदी हसन साहब, इनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना है. और बिफोर आई गो फर्दर, आई वांट टू से इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू सिंग विद बोथ ऑफ दीज जेंटलमैन. और मिहिर जी, आप दोनों ही मुझसे ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट है, तो सबसे जूनियर मैं ही हूँ. And I like it that way. That's very nice. तो आप दोनों की तैयारी कैसे रही है इस टाइम पर? फिर वापस आपके दोस्त साहब आ गए कि फिर वर्चुअल जूम पे ही आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस कुछ किए? नहीं, एक्चुअली गणेश जी एंड आई, you know, we meet very frequently. He's probably the only one who has come to my house in last 1 year during this pandemic. So we meet very often. तो आपके ड्रेस कोड्स भी बड़े सिंक रहते होंगे. Yeah, actually this is a gift from him. Oh, that's so sweet. I thought this is a perfect occasion to wear it. Very nice, looking very nice and you know coordinating and in sync. चलिए चलते हैं आपके गजल की तरफ. और वही बात है कि जब आप दूसरे गजल की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट या 40-50 सेकंड्स का आप गैप ले सकते हैं, और then we'll continue with the next one. Let's go ahead. So the next ghazal is फिर वही शाम. It's a very famous ghazal. And you know, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आए. फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है. दिल को समझान तेरी याद चली आई है. फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है. दिल को समझान तेरी याद चली आई है. फिर वही शाम. फिर तस्वुर तेरे पहलों में बिठा जाएगा. फिर तस्वुर तेरे पहलों में बिठा जाएगा. फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा. दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है. फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है. दिल को समझान तेरी याद चली आई है. फिर
तेरी जुल्फ के रुखसार की बातें होंगी, फिर तेरी जुल्फ के रुखसार की बातें होंगी। हिज्र की रात मगर प्यार की बातें होंगी, फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझान तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझान तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। थैंक यू। थैंक यू जी। मिर्जा यूसुफ चंगेजी, जी हाँ, इसमें भरत भूषण साहब का ये नाम था इस फिल्म में, जहाँ आरा Mala Sinha was also there. And of course, when you're talking about ghazals, I just did mention about Madan Mohan Saab, the Shahenshah of ghazals. उन्हीं की composition में था ये, and I just don't know what's missing right now this evening. Maybe all of us sitting in the same room, but I guess thanks to Zoom, Facebook, internet, and all the facilities that we have got in this modern world, we still are getting so very close to the ambience. I want to hear from our viewers, our watchers and audience. How are they feeling about it? Please key in, punch in your thoughts, and anything that you want to convey to our singers and participants this evening. Rajendra Kishan साहब के बोल थे, और Jahara, I guess, you know, these movies with time and also getting some time to watch them again definitely brings you to a moment of awe. Oh my goodness, at that point, maybe around 65 or 64 के आसपास की बात है ये फिल्म, और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है, and they made best use of whatever was available. And right now just complaining about हाँ भाई you know Zoom है और Facebook है, लेकिन क्या करें, लेकिन मजा उसी में है कि जो आपके पास है उसी से कुछ मिला के आपके सामने पेश करें. And we are so thankful to Dinesh ji and to Harshi for bringing us such beautiful ghazals along with Mihir and Vijay ji. Harshi, चलिए next ghazal की तरफ, और अगर आप कुछ कहना चाहें किसी को कहीं को भी. The next one is Rafi Saab's famous song or ghazal, whatever you can call it. कोई सागर दिल को बहलाता, very close to my heart. I absolutely love it. Beautiful. And before we go to that, you know, जैसे आपने अपने आप को भी जैसे अपने अभी करेक्ट किया, जैसे बात होता है सबके साथ कि हम गीत कहते हैं, गाना कहते हैं, गजल कहते हैं, और जो बिल्कुल जो प्रोफाउंडली म्यूजिक के बारे में जानते हैं कन कन एवरी कोने को, I sometimes do feel that, you know, then there are legends or somebody who's very knowledgeable sitting in front of me and I say, oh, चलो next गाने की तरफ चलते हैं, फिर वो कहें कि गजल की तरफ चलते हैं, and I'm like, okay. Right. I have clarified this many times. It's a confession. You know, there's a difference between Geet, Ghazal, Nazm, you know, but, you know, इतना दिमाग है नहीं मुझ में, मैं भूल जाता हूँ. हम सब आप ही के बनाव में बैठे हुए हैं, तो हम मजे ले रहे हैं. लेकिन the bottom line is, if you like it, you sing it, you enjoy it. Absolutely, and that's where we stand on शामे गाना. तो इजाजत दे मुझे. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं. थोड़ा स्लो करते हैं. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में
सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ। कैसे कह दूँ हमसे घबराता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ। आज कोई राह दिखलाता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो। जिंदगी के आईने को तोड़ दो। इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। थैंक यू। वाह, the depth, the passion, Shakil Badani साहब के बोल और was I think on screen it was Dilip Kumar साहब along with Wahid Rahman and Johnny Walker थे शायद। दिल दिया और दर्द लिया। और आप अगर बोल रहे हैं कि दोस्तों की सागर सागर कैसे नहीं दिल बहला सकता, सागर किनारे तो बहुत कुछ होता गया। somebody is there like going कि इस लड़की को अभी के अभी चुप करा दो। जी नहीं, मैं सागर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सागर की बात कर रही हूँ, जबकि उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। सागर यानी कि प्याला, गॉबलेट। तो अगर आप ये गाने की पिक्चराइजेशन देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिलीप साहब बिल्कुल एक दो छोटी सी ले रहे हैं, लेकिन उनका दिल नहीं बह रहा है। कहते कि इतने इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में भी उस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। तो हमें से कई लोग जिनको लैंग्वेज से इतना वास्ता नहीं है, जैसे धीरे धीरे हम सीखते आगे चले गए, तो अक्सर आप देखते हैं कि जब प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो इन जो लिरिक्स नज़म्स में जो है, वो यू हैव टू पुट द वेट ऑन दोस उर्दू वर्ड्स, राइट। सागर और सागर तो दोनों में फर्क है। सागर जो समंदर है और सागर गॉबलेट है ना जी। सही कहा मैंने कुछ कि कुछ करेक्शन की जरूरत है उसमें हर्ष जी। ओके, लेट्स गो टू विजय जी एंड हिज टीम। एंड मुझे पता है कि विजय जी के माइक से मुझे थोड़ी सी फीड आ रही है, तो आई विल गिव द माइक टू देम एंड दे कैन टॉक अबाउट द गजल्स। प्लीज गो अहेड। सो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आवाज़ हमारे कोऑर्डिनेशन और आवाज़ क्लियर आती है? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So before I go further, I want to compliment both my singers,
में हमारे जो तीनों सिंगर्स हैं जो वहाँ, और जो तबला उस्ताद नवाज जो पीछे बैठे हैं, क्या क्या हाथ है आपका, बहुत जनाब, बहुत अच्छे। और मिहिर जी बहुत अच्छा हारमोनियम बजा के गाते हैं, और आप भी साहब, ये दोनों हर्ष जी और सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द होल टीम हियर। और आपकी कॉम्पियरिंग तो क्या है, मुझे तबस्सुम जी याद आ गई। Oh my goodness. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Thank you जी, तो कोशिश आपने करती एक हूँ। क्वेश्चन पूछा था गजल के बारे में जी कि ये गजल दिस, तो एक जरा शेर याद आ गया है, ऐसे ही मैं शेयर करना चाहूंगा। इरशाद। Instead of saying something, let me put it in शायरी मिजाज। गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। वाह, अशयार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशयार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं। कुछ शेर फकत तुषार जी को सुनाने के लिए है। तो आज ऐसे शेर लेके आए हैं। एक बहुत ही, जब गजल की बात होती है तो मेहदी हसन साहब, नाउ ही इज सच अ ग्रेट ग्रेट सिंगर। सो उनकी गजल गाना वो एक गुस्ताखी कहता हूं मैं, पर फिर भी ट्राई करते हैं। तो ये गजल है, जो उसके जो शायर हैं वो हैं वहाज मोहम्मद खान, और इसका कंपोजिशन मेहदी हसन साहब ने राग भूपाली में किया है। भूपाली इज अ वेरी सिंपल राग, बट समटाइम्स सिंपल थिंग्स आर एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। सो ये भूपाली राग पे आधारित कंपोजिशन है। सारे ग प ध पध सा सा ध प ध प ग प ध प ग रे ध रे सा। ये भोपाली के सुर है। बुलबुल ने गुल से, अब थोड़ी प्यार की बात करेंगे। बचपन की बात की, थोड़े गम की बात भी हो गई, तो थोड़े प्यार की बात करते हैं। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने भी तारों से कह दिया। क्या कहा कि दुनिया किसी के प्यार में, प्यार ही सब कुछ है। किसी ने कहा है कि दुनिया कितनी बेदर्द है, कितनी नाइंसाफी है, कितने गम है और खुशी नहीं, मगर है खुदा मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जहां कोई चाहने वाला न हो। I would rather be happy on earth with somebody with love than go to the Jannat and nobody to love me. बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से
कह दिया एक 14वीं के चांद ने तारों से कह दिया दुनिया किसी के प्यार में। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के भूले से मुस्कुरा तो भूले से मुस्कुरा तो मोती बरस पड़े, भूले से साधा पधा पग पगर गरे सा सारे गा सारे गा सारे गा। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी सारे गरे गा प गरे गा प दा प गरे सारे गा रे गा प गा प धा सा धा प गा। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के जन्नत से कम नहीं। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, हुस्न जहान हो, हुस्न जहान हो। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा हो तुम, मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो तुम, मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हूँ
हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में। बहुत खूब। You can mute the mic for 40 seconds. Thank you. Wahaj Mohammad Khan, widely known as Dukhi Prem Nagri. He was a very famous poet, lyricist, and film journalist. And आप किसी भी गजल प्रोग्राम में अगर जाएंगे तो उनके लिखे हुए गजलें तो डेफिनेटली पेश होती हैं, और जैसे कि इस तरह से। और इस गजल के बारे में जो कुछ भी कहना था, जितनी भी जानकारी चाहिए थी, वो Vijay ji was kind enough to share it with all of us. So I think we have time now to get to the next ghazal by them. And once again, I want to thank Deepak ji and Rishabh ji. What a wonderful presentation by both of them, and accomplishment there for that. Vijay ji, you can switch on your mic, please. Give big hands to both my accompanists. और कभी सुनने वाले को भी दाद देना चाहिए, क्योंकि अच्छे सुनने वाले होते हैं तो गाने की कुछ और बात बनती है। आप लोगों के एक्सप्रेशन जो देखता हूं मैं, तो गजल इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट इज नॉट लाइक अनदर फिल्म सॉन्ग्स वेयर यू हैव एग्जैक्ट फॉर्मेट प्री डिफाइंड. समटाइम्स वी गेट इंस्पायर्ड बाय आप जैसे खूबसूरत चेहरे हैं और आपकी जो दाद मिलती है, तो थोड़ी और कुछ मुर्कियाँ और गमक करने का जी हो जाता है. तो अभी नेक्स्ट गजल जो मैं पेश करने जा रहा हूं, जावेद अख्तर साहब की गजल है, और अगेन जगजीत सिंह की. मैं कहता हूं देयर आर 2 नेशनल एंथम्स इन इंडिया बाय जगजीत सिंह. वन इज होठों से छू लो तुम, और दूसरा जो मैं अभी गा रहा हूं. अगर ये 2 गाने नहीं होते तो कई गाने वालों की महफिल में जो मजा आता है वो मजा नहीं आता. तो ये है राग यमन पे आधारित जगजीत जी की जो काफी कंपोजिशंस यमन पे हैं, उसमें से एक में है. जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ख्याल आया. जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया. क्या बात.
तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, 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 हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा, तुमको देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। Thank you. जी हाँ, please mute your mic. No complicated lyrics, no very heavy meaning वाले उर्दू की शेरो शायरी, metaphors were used, simple. जैसे कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि शायद इसी का बहुत ही पुराना वर्जन था। जावेद अख्तर साहब ने पहले भी ये गजल ऐसे ही लिख डाली और आज हमको लगता है कि कहीं सुना सा है, लेकिन क्योंकि इसे हमने कई बार सुना है, लेकिन हर बार वही महसूस, वही फीलिंग एकदम से फिर से आ जाती है ना। बहुत ही खूबसूरत पेशकश ऑफ विजय जी, एंड दिस शाम ए गाना has become Sham a Ghazal. I myself am getting confused. What are we presenting this evening? We have Harsh, Mihir, Vijay, and we also have Deepak and Rishabh and Ganeshi also. And Tushar ji, I know वक्त की तरफ हम देख भी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहिए आगे जाने से पहले, before we go to the final round. And just one more request to all our participants, please do not exit after your final song. We'll just have a little quick thank yous to our viewers in the end, so you'll get time enough for that. हाँ जी, तुषार जी। माधवी जी, आज की शाम, गजले शाम, क्या खूब, वंडरफुल। हर्ष, विजय एंड मिहिर, सुपर, एक से बढ़कर एक गजलें आज उन लोगों ने चूज की है और पेशकश भी बहुत अच्छी। This is different kind of evening we are enjoying. So thank you so much, all three of you and all the musicians with you, accompanying you. I think this is a wonderful evening. Thank you so much. Let's go ahead to the final round and we will start with Mihir ji. Mihir ji, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। चलिए, आपका माइक। Yeah. Thank you. फिर से एक बार वही आवाज, सुरीली और नशीली आवाज भूपेंद्र साहब की,
और बोल है करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम दुआ दुआ होगा। बरसता भीगता मौसम दुआ दुआ होगा। बिगड़ती शम्मों में दिल का हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट
गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। थैंक यू। मास्टर ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हीं में यश चोपड़ा साहब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सगर प्रसादी साहब की बात। एंड ही वाज द मेजर स्क्रीन प्ले राइटर फॉर मोस्ट ऑफ द वेरी फेमस यश चोपड़ा फिल्म्स, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, ये सारी फिल्मों में इन्होंने स्क्रीन प्ले की है। और ये बाजार फिल्म देखिए ना, इत्तेफाकन बात है कि इस फिल्म के गाने इन्होंने नहीं लिखे थे, स्पेशली ये वाला। एंड द मूवी वाज मेड बाय हिम, दिस वेरी वेरी फेमस लिरिसिस्ट, राइटर एंड dialogue writer and story writer. And the story of this movie, Bazaar, came to his mind when he read a news article which talked about that a young bride could be bought for money and then left after some time. So that's where he picked up this little concept and he wrote a story, and this movie was a blockbuster. The music, what do we talk about? One simple, beautiful presentation here by Mihir. Let's get to Harshi and for his final presentation of this evening. आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। जी माधवी जी, हाँ जी। तो ये मेरी लास्ट पेशकश है। ये पाकिस्तानी मशहूर फनकार हैं गुलाम अब्बास साहब, उनकी काफ़ी फेमस गज़ल है। एंड आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस गज़ल। आपने व्हेन यू स्टार्टेड द प्रोग्राम यू सेड you have to accept the change. And this is just the opposite. I think this is someone who is in denial. So her lover is gone, he's not going to come back. लेकिन वो सोच रही है कि वो आ जाएंगे, शायद मैं कम इंतज़ार किया है अभी। और वो बेवफा नहीं है, शायद मेरा प्यार ही कम है। तो ये एक इश्क का एक रंग है ये। तो आई होप यू लाइक इट। मुझे बेहद पसंद है। Sure. और एक बार फिर से मैं शुक्रिया करता हूँ मेरे उस्ताद जावेद जी का, जिन्होंने मुझे ये सिखाई है। उनको बड़ी तकलीफ देता हूँ मैं। तो आई होप आई डू सम जस्टिस टू इट। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, उस पे कोई असर ही ना हो कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। मैं कैसे मान लूं, उस पे कोई असर ही ना हो कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम, बेकरार ही कम है। वो आ तो जाए मगर
इंतजार ही कम है। ज़माना कहता है वो मेरा साथ छोड़ गया, ज़माना कहता है वो मेरा साथ छोड़ गया, वो मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया, वो मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया। मैं क्या करूं कि मुझे, मैं क्या करूं कि मुझे, मैं क्या करूं कि मुझे एतबार ही कम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। Thank you so गुलाम much. अब्बास। रंजीत से सही ऐसी फीलिंग आ रही थी ना सबको, जो हमारे जो लोग हमें टेक्स्ट करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ, शाम एक गजल हो रहा है आज, द लास्ट फ्राइडे ऑफ द month we bring you a special and So very interesting let me first thank Ganesh ji, and this is totally extempore. We haven't practiced together before. and we thoroughly enjoyed. it's We will tell you live. that. Thank you so much, and I have to say, Madhvi ji, you are doing a wonderful job Thank you. as always, and thank you, Dr. Patel. जी जी जरूर, we'll just get to you after the final song and All we'll right, not okay. log out, okay? Abbas Saab has given voice and he's been given the status of a legendary artist among many numerous vocalists. I must personally thank Harshi for bringing this ghazal out, and because I want people to Google and find these singers again. And I'm not saying that none of you know about it. You must be very well versed with his singing and the ghazals and his presentation, but yet there's the time and generation that goes by and we forget about these renowned names. Let's go to Vijayji and his team and for his Akhri presentation of this evening. And once again, please do not log out. थैंक यू। ये जो मेरी ये गज़ल नज़्म जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, वो उसके शायर है कृष्णा बिहारी जी, और उनका तखल्लुस है नूर। और ये गज़ल मुझे इतनी पसंद आई, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम, व्हेन यू सी सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स पैसिंग, सो मेनी आर सफरिंग। तो उसकी मैं एक दो लाइन माधवी जी आपकी परमिशन से सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं गाऊं तो, क्योंकि तो जरा उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। नूर जी कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से, तुषार साहब सुनिए, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये तो पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। सो मैंने उसका कंपोजिशन खुद करने का प्रयत्न किया है, और फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि बड़े बड़े म्यूजिशियन ने, बड़े बड़े सिंगर्स ने उसको कंपोज किया है, बट आई डिडंट नो, सो आई डिड इट माई सेल्फ। तो ये मेरी एक खुद की कंपोजिशन आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। This composition is in two rag. One is rag Jinjoti, and the second half of the composition is based on rag Jansang Mohini. ये दो राग का मिक्स करके to
give you an example. कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा. ये जिंजोटी राग है. So you will get that flavor. जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा क्या बात ही नहीं. और क्या जुल्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं. क्या बात. शेर गौर फरमाइए. माधवी जी बहुत बढ़िया शेर है, सुनिए. इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं. मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. और क्या जुल्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं. जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, जड़ दो चांदी में चाहे सोने में. आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं. और क्या जुल्म है पता ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं, जिंदगी से और आखिरी शेर बहुत ही उम्दा शेर, काबिल गौर. सच घटे या बढ़े सच न रहे, सच बढ़े या सच सिर्फ सच होता है, उसमें कुछ ज्यादा सच या कम सच ऐसा नहीं होता. सच बढ़े या घटे सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. और क्या जुल्म है पता
जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। Thank you. Thank you. Mihirji, let's have a quick round of your words for your viewers and we will wind up the show. Thank you so much, Madhvi ji, आपको डॉक्टर साहब and both the my colleagues जिन्होंने परफॉर्म किया बहुत ही अच्छा। विजय जी, आपसे तो मैं बहुत उम्र में भी छोटा हूँ और एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटा हूँ। आपकी गज़ल सुन के बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसलिए सच बोल रहा हूँ कि ये राग रागिनियों से मैं बहुत बहुत पीछे हूँ, बहुत दूर हूँ। आई लाइक इट, लेकिन ये बिजी स्केड्यूल जीवन का, आपने बोला ना कि ज़िंदगी में गुनाह क्या है, हमारा यही है कि टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं सीख नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी भी इस उम्र में भी इच्छा है कि शायद रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा कुछ मैं सीख पाऊँ आपके जैसा। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स ऑल्सो, हमारे जो भी आज व्यूअर थे उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों को सुना आपने और यकीनन आपने अपनी राय भी रखी होगी जो मैं बाद में देख लूँगा। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, माधवी जी और आप सभी को थैंक यू। Thank you. Harshi? Thank you. Thank you, Madhvi ji, again for being such a wonderful comp here, Dr. Patel, and both the artists here. And I especially want to thank the audience. I've been reading the comments. It's been, they've been very encouraging for all of us. And thanks everyone for joining. I hope to see you all again. Thank you. Thank you, Ganesh. Thank you so much. And Ganesh abhi bhi nahi baat karna chahte. Okay, let's go to Vijay ji and his team. Namaste. Thank you, first of all, Tushar ji, Madhvi ji, हर्ष जी, मिहिर जी और जो तबला नवाज पीछे बैठे हैं और दर्शना जी, सबको मेरा प्रणाम। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को खास थैंक यू, बिकॉज ऐसी चीज़ें बार बार प्रेजेंट करने के मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट है दैन फिल्म म्यूज़िक। तो थैंक्स फॉर योर एनकरेजमेंट एंड opportunity to present this, and I appreciate having these two good artists. You are equally good, don't think you are not, you are very good, you are both very talented, and हमने भी आज बहुत सीखा है आप लोगों से। तो thank you so much everybody. Thank you. And thanks to my two team members, Deepak ji और Rushabh. Absolutely. I am so fortunate to have them. So, Sure. thank you. Tushar ji? Thank you, everyone. Thank you, all the singers, musicians. What a wonderful. This will be one of the best evening of Nagara, I would say. Thank you so much for being part of this wonderful evening. Madhvi ji, next Friday will be our 75th episode coming up, Diamond Jubilee episode. I have been waiting for this milestone for a long time, so it's coming very soon next week. So let's enjoy next week and keep coming, keep singing, and thank you so much. Sure, thank you. The Creator has given us the maximum blues in the life, the blue sky, the oceans, the rivers, the lakes, and the deity that qualifies with bravery, manliness, determination, ability to face difficult circumstances is always also in blue, because he also has a stable mind. And the other color that is always of importance is the Pitambar color, that is yellow, which signifies the sun, which is all about light and direction. And when you talk about blue and yellow together, it is our little Krishna's birthday. आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीकेंड इज जन्माष्टमी, सो जहाँ कहीं पे भी हैं आप जन्माष्टमी स्पेशल कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये महामारी खत्म हो जाए, सबके घर में सुख शांति हो और माधवी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। I'm going to catch you hopefully in the next episode. Until next week, Jai Shri Krishna. Good night.